So let's continue exercise 4B, question number 3. Okay. In this exercise, we are using this formula. A square minus B square can be written as A plus B, A minus B. Okay, we are going to use this formula in this exercise. (16 A raised to 4 minus 81 B raised to 4). Now, what I have said is that we have to write this in the form of squares. Yes, Mitansh. Yes, so 16 is the 4a square and 81 is 9a square. Yes. Wait, sir, wait. So 16a raised to 4 minus 81b raised to 4. So 16a raised to 4 can be written as, we have to write it in the form of square, remember that. So 16a raised to 4 can be written as 4a square the whole square. 16 किसका स्क्वायर है? 4 का. a raised to 4 किसका स्क्वायर है? a स्क्वायर का. Okay, minus this is 9p square the whole square. Okay, so now this is your content inside the bracket. 4a square अंदर है और 9b square ब्रैकेट के अंदर है. ठीक है, तो जो भी ब्रैकेट के अंदर होता है वो एक बार ऐड होगा और एक बार सबट्रैक्ट होगा. करेक्ट, जो भी ब्रैकेट के अंदर है वो. ठीक है, सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी 4a square plus 9b square, 4a square minus 9b square. ओके, रिमेंबर ये जो फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, इस फॉर्मूला में बीच में हमेशा माइनस साइन ही होती है. माइनस साइन है, एक ब्रैकेट स्क्वायर माइनस दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर. जब माइनस साइन है तो ही हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं. अगर आपके पास एक ब्रैकेट स्क्वायर प्लस दूसरा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन है तो आप फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. इट इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द नेगेटिव साइन. ओके, तो हियर अब आगे देखो, यहाँ पे तो प्लस साइन है तो इसको तो आगे सॉल्व नहीं कर सकते. प्लस साइन जब होगी तो यू कैन नॉट सॉल्व इट फर्दर. ठीक है, बट प्लस साइन है यहाँ पे ना, तो यहाँ पे हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते. ठीक है, लेकिन द सेकंड ब्रैकेट हैज द माइनस साइन इन बिटवीन. सो ट्राई करके देखते हैं, इज इट पॉसिबल. सी 4a स्क्वायर, ये किसका स्क्वायर है? दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2a. ओके, माइनस साइन 9b स्क्वायर इज द स्क्वायर ऑफ 3b. स्क्वायर्स पॉसिबल हो गए, दो ब्रैकेट्स मिल गए हमें. फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर. Okay, so again I can use the formula here. This is the contents inside the bracket. So this bracket you copy it as it is, nothing will happen here. And here you will write 2a plus 3b, 2a minus 3b. It is important to do these steps. If you stop here, you won't get full marks, because आगे possible है अगर simplification, तो you have to do it. Copy it. This is your final answer. Sir, why can't we do the same with the first bracket, 4a square plus 9b square? That is what I am saying, Krishna. के फर्स्ट ब्रैकेट में बीच में प्लस साइन है, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, माइनस का है. ओके, Okay. आप सारे सम्स देखो, जितने भी सम्स हमने अभी तक किए हैं, जितने भी बार हमने फॉर्मूला को अप्लाई किया है, तो बीच में माइनस साइन ही है हमेशा. बीच में माइनस साइन है. सी दिस सम आल्सो, बीच में माइनस साइन. अगर प्लस साइन होती तो सम पॉसिबल ही नहीं है. ओके, now this is also the same. 625 is a square of 25. a4 is a square of a square. Minus 256 is a square of 16. b4 is a square of b square. So first bracket square minus second bracket square. So add both the brackets, whatever the contents are there inside the bracket के जो contents है, they will get added and they will get subtracted.
अब जो नेगेटिव वाला ब्रैकेट है, वी कैन ट्राई इफ पॉसिबल, इसको आगे कर सकते हैं हम, नेगेटिव वाले ब्रैकेट को. So 25a square can be written as 5a the whole square minus 16b square can be written as 4b the whole square. ठीक है? And the next step will be 5a plus 4b, 5a minus 4b. फर्दर नहीं कर सकते क्योंकि स्क्वायर नहीं है यहाँ पे. स्क्वायर होगा तो ही सॉल्व होता है ना. फर्दर वी कैन नॉट डू इट बिकॉज देयर इज नो स्क्वायर. Now, next sum. Question number 3. X raised to 4 है, so this can be written as x square the whole square minus x raised to 1 upon 4 can be written as 1 upon x square the whole square. 4 को हमेशा 2 square बनाते हैं. Okay. Now I will add both the brackets and I will subtract both the brackets. Add both the brackets, subtract both the brackets. And then this cannot be solved further. ये जो bracket है left side में, this cannot be solved further because plus sign है बीच में. Okay. But we can solve this bracket क्योंकि this is with minus sign. This is with minus sign. Yes, any doubt, Krishna? Sir, in the start x raised to 4 minus 1 upon x raised to 4, we cannot cancel that. थोड़ा जोर से बोलो जरा. We cannot cancel the x raised to 4 on. No, because no, you cannot cancel because there is a plus sign in between. सिर्फ multiplication में cancel होता है. At the start here, x raised to 4 minus 1 upon x raised to 4. ये ना ये step ना. Yes. हाँ, but there is a minus sign in between. ये Okay. माइनस साइन है ना बीच में, तो कैंसिल नहीं कर सकते. अगर मल्टीप्लिकेशन होता, समझो अगर ऐसा होता into 1 upon x raised to 4, तो you can cancel this. Okay. If there is addition or subtraction sign, you cannot do that. And here I can further solve this sum. X square minus 1 upon x square will become x plus 1 upon x, x minus 1 upon x. Students, we need to hurry up a little bit because there are many questions in this exercise. Lots of questions. So थोड़ा हमें speed up करना पड़ेगा. You will also have to speed up. Any doubts you can ask me. Concept remains the same. See, x raised to 8 दिया है. X raised to 8 है. So how will I write this? I will write it as x raised to 4 the whole square minus 1 upon x raised to 4 the whole square. Okay. So जो भी bracket के अंदर है, the contents which are inside the bracket will get added once and will get subtracted. Now this cannot be solved further. But जो ये वाला part है यहाँ पे, this part, x raised to 4 minus 1 upon x raised to 4. ये तो पूरा ये same question ही बन गया, question number 3. तो जैसे इस question number 3 को solve किया है, पूरा यहाँ पे solving आएगी वापस, same to same. And this will remain as it is. This bracket will remain as it is. Nothing will happen to that bracket. So ये bracket को आपको सिर्फ copy करना है
x4 1 upon x4, ठीक है। एंड इसे आपको पूरा वापस सॉल्व करना है, x स्क्वायर द होल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर द होल स्क्वायर, ठीक है। So this will get added once, x square plus 1 upon x square minus 1 upon x square. पूरा ये क्वेश्चन कॉपी होगा जो यहाँ पे किया है वो, बिकॉज सेम पार्ट आ गया ना, ये सेम है। एंड देन नेक्स्ट स्टेप, Sir, can you explain again the third step? this step, this one. Yes, sir. See, आपको ये पहला फर्स्ट स्टेप समझ में आया कि मैंने x रेज टू 8 को क्या लिखा, x रेज टू 4 द होल स्क्वायर, सही है। अरे 2 मिनट अनम्यूट रहो जरा। Yes, sir. तो x रेज टू 8 को लिखा है x रेज टू 4 द होल स्क्वायर। Yes, sir. हाँ, तो बाद में तो x रेज टू 4, तो यहाँ पे क्या हुआ, x रेज टू 4 1 अपॉन x रेज टू 4, तो एक बार ऐड हुआ और एक बार सब्ट्रैक्ट हुआ, यहाँ पे ऐड हुआ है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हुआ है। Yes, sir. अब ऐड होने के बाद इसको तो फर्दर आप सॉल्व नहीं कर सकते इसको, Sir, why? क्योंकि बीच में प्लस साइन है। Okay, प्लस sir. साइन के लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारा जो फॉर्मूला है दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, Yes, sir. तो प्लस साइन के लिए सॉल्व नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्लस साइन के लिए नहीं हो सकता, तो ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है, ये जो नेगेटिव वाला है x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 4, ये सेम टू सेम आपने यहाँ पे ये किया है। यहाँ पे ये पूरा एक क्वेश्चन ही था, x रेज टू 4 माइनस 1 अपॉन x रेज टू 4, कैसे सॉल्व Yes. किया था इसको, वो सेम स्टेप्स यहाँ पे भी आ जाएंगे। Yes, sir. समझ गए? Yes, sir. ओके, copy it fast. Next question. Square form में, so this is 256 is nothing but 16 square and x raised to 8 will be written as x raised to 4 the whole square minus this is y raised to 4 the whole square. So bracket के अंदर क्या है, 16 x raised to 4 और y raised to 4. So एक बार ऐड होंगे एंड एक बार सबट्रैक्ट होगा। अब जो एडिशन वाला ब्रैकेट है इट विल रिमेन एज इट इज, मैंने बताया है, बिकॉज देयर इज नो फॉर्मूला अप्लाइड इन द एडिशन ब्रैकेट, वो हम लास्ट तक ऐसे ही रहेगा। नेगेटिव वाला ब्रैकेट है दैट कैन बी सॉल्व फर्दर। सो 16 किसका स्क्वायर है, 4, एंड x raised to 4 is the square of x square, correct, the whole square, minus y raised to 4 is the square of y square, correct. So this has again become a square minus b square, again your formula a square minus b square, ये होगा x raised to ब्रैकेट के अंदर है they will get added and जो ब्रैकेट के अंदर है they will get subtracted also, okay, they will get added and subtracted. So ये again this positive bracket, the bracket which has the positive sign cannot be solved further, तो ये as it is copy होगा, ठीक है। But this negative bracket can be solved further, जो negative bracket है can be solved further, कैसे, 4x square is nothing but 2x the whole square minus y square is nothing but y the whole square,
Okay, so this is 2x the whole square minus y the whole square. So what is there inside the bracket? 2x or y. So add 2x plus y, 2x minus y. This will be my answer. I hope this is understood. We can do the next sum. Copy fast. Yes, students. Should I start with the next sum? We have completed question number 3. Let's start with question number 4. Okay, so I'll do the next sum. Same concept remains the same in this also. In the entire exercise, we are only going to use the formula a square minus b square. Okay, so ये क्या है? First bracket square minus second bracket square, दोनों brackets बना के दिया है ready. ठीक है, both the brackets are ready. First bracket square minus second bracket square. तो हमारा formula क्या कहता है? Add both the brackets. जो भी bracket के अंदर है उनको add करो. And जो bracket के अंदर है उन्हें subtract करो. बट सब्ट्रैक्ट करते वक्त यू हैव टू बी केयरफुल. सब्ट्रैक्ट करते वक्त जब आप दूसरा टर्म लिख रहे हो b+5, तो यू हैव टू मेक अ ब्रैकेट हियर, क्योंकि उसकी साइन चेंज होगी माइनस की वजह से. ओके, सो योर a+b, 8 + 5 is 13. 8 + 5 is 13. And your a + 8 minus b minus 5. So 8 minus 5 is +3. This is my answer. Any doubts here in the first question? Simple formula application, adding both the brackets, subtracting both the brackets. And while subtracting, you have to be careful because there is a minus sign here. So आपको ये bracket डालने पड़ते हैं minus sign के लिए. Any doubt, Mitansh? So we cannot solve it further. No, we cannot solve it further. Na? How can you solve it further here? What is coming in your mind? Sir, I thought that we can replace something like 13 there and नहीं. Brackets में है ना, we cannot do anything. Yes, Ali. Are you saying something? I can't hear you.
Sir, can you explain the sum once again? Yes. What? Can you explain the sum once again? This first one. Yes, sir. 9 plus 8. See here, what is there inside the bracket? A plus 8 and B plus 5. Two brackets here. So ये a square minus b square का formula. So add both the brackets and subtract both the brackets. Okay. तो add किया तो 8 और 5 add हो गया 13 बन गया. And a plus b will remain as it is. A minus b और ये 8 और 5 subtract होंगे. 8 minus 5 that will become plus 3. Okay, so this is your first bracket, this is your second bracket. Okay. Okay. चलो next sum. Now here next sum में आप ध्यान से देखो this bracket here, ये जो square है ना यहाँ पे, ये जो square है यहाँ पे, ये square सिर्फ इस bracket का है. जो square है ये सिर्फ bracket का है. But ऐसा नहीं होना चाहिए. Square पूरे term का होना चाहिए. The full term should have square. Okay, तो full term को हम square कैसे देंगे? ये जो यहाँ पे number है, ये जो यहाँ पे number है 36, ये भी तो एक square है. तो आप क्या करो? 36 किसका स्क्वायर है? 36 इज द स्क्वायर ऑफ 6. तो आप लिखो 6 a plus 3 द होल स्क्वायर. जो 36 है उसको भी स्क्वायर के अंदर लेके आओ तो वो 6 बन जाएगा. ओके, आप चाहिए तो इसको अगर मैं 2 स्टेप में करूं तो यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. 36 क्या है? 6 का स्क्वायर है. ओके, और यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी a plus 3 का स्क्वायर है, तो इन दोनों स्क्वायर को हमने साथ में लिख दिया. यू कैन अंडरस्टैंड इट लाइक दिस. आप चाहिए तो डायरेक्टली भी ये स्टेप कर सकते हो या आप बीच में ये वाला स्टेप भी कर सकते हो. सो 25 क्या है? 5 स्क्वायर और a minus 2 ऑलरेडी स्क्वायर है. So I can write it as 5a minus 2 the whole square. Once you have written the whole square, then you can open the brackets inside. तो ये बन जाएगा 6a plus 16 threes are 6 threes are 18 the whole square minus 5a minus 10 the whole square. तो अब हमारा इस पैटर्न देखो, हमेशा हमारा एम क्या है? टू ब्रिंग फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर. ये हमारा एम है हमेशा लाना. फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर. तो अभी आ गया, मेरे पास आ गया है फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर. So we can't cancel the 2 at the third step. कैंसिल द टू. Square. कौन सा कैंसिल करोगे आप? Sir, the third step one. ये 2. No, sir. Whole square. होल स्क्वायर क्या करेगा? Yes. इस स्क्वायर क्या करेंगे हम? Cancel. This sir? 2. Sir, the minus side. 6a1. Well, whole square. नहीं, मैं आप कौन सा स्क्वायर को माइनस करने कैंसिल करने? ये वाला स्क्वायर. Yes, sir. We can cut. नहीं, ऐसे कैसे कट कर सकते हैं? सब्ट्रैक्शन साइन है ना, ऐसे थोड़ी स्क्वायर कट होता है. ऐसे तो फिर ये फॉर्मूला ही नहीं बनेगा ना. जैसे अगर ये फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो स्क्वायर स्क्वायर अगर काट देंगे तो फॉर्मूला ही नहीं बचा ना, तो a माइनस b हो गया, वो गलत हो जाएगा. Okay, sir. So now I have 2 brackets the whole square. So whatever the content is there inside the brackets, I will add them once. Plus 5a minus 10 and 6a plus 18 minus 5a minus 10. और माइनस करते वक्त you have to make a bracket again. So 6a plus, अब यहाँ पे इस ब्रैकेट के अंदर सिंप्लीफिकेशन क्या पॉसिबल है? तो 6a plus 5a बन जाएगा 11a, 18 minus 10 बन जाएगा 8. यहाँ पे 6a plus 18 open the brackets minus 5a plus 10. 6a minus 5a is a. 18 plus 10 is
28. So this is my final answer. Sir, how did you got 11a minus 8? Sir, Sir, it should be 11a plus 8. hello. Hello. This is the same sum. Question number 3 is same as question number 2. ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, 49 को आई हैव रिटन 7 और होल स्क्वायर बना दिया, 64 को 8 किया और होल स्क्वायर बना दिया. ओके, एंड देन हमने ब्रैकेट्स को ओपन किया यहाँ पे. So this became 14x plus 7y 8x minus 16y, same as this sum. Then what you will do, you will add both the brackets and you will subtract both the brackets. ये जो अंदर का कंटेंट है ब्रैकेट का, इनको एक बार ऐड करेंगे और एक बार सबट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, डू दिस. Do this, complete the sum, these steps, same as these steps.
Check your answer behind. What answer are you getting? Yes, Sir, the screen is half. what? The screen is showing only half of the. हाँ हाँ हाँ, yes yes, because वो उतना ही सम देखना था इसलिए मैंने उतना ही रखा था. Okay, sir. So I hope you have completed this. Next. Question 4. 9x square minus 4y plus 2x the whole square. This is also same. What we have to do here, 9x square is nothing but 3x the whole square लिखेंगे. अब ये जो 4 ब्रैकेट के बाहर है, this 4 is a square of 2. So I will write 2y plus 2x the whole square. 2 को अंदर लाएंगे ना ब्रैकेट के, बिकॉज 4 स्क्वायर क्या है, 2 स्क्वायर होता है. 4 क्या होता है, 2 स्क्वायर होता है. Okay, 4 is nothing but 2 square. So y plus 2x the whole square. तो इसको मैंने एक साथ लिख दिया यहाँ पे. Now whatever is there inside the bracket. पहले तो हम इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ठीक है. फर्स्ट ब्रैकेट एज इट इज, इसको ब्रैकेट के अंदर ओपन कर देते, तो दिस विल बिकम 2y plus 4x the whole square. Okay. Hello. Nothing, sir. My hand was raised.
Yes, Veer, any doubt? Yes, sir. Over here there is 9x square. So why did you took 3x square? You should have took 3 square x square, ना? होल स्क्वायर करेंगे ना हमें। 9 किसका 3 का स्क्वायर है और x स्क्वायर किसका है x का, तो इसको पूरे ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर डालेंगे ना। Okay, sir. एक्चुअल में उसका मीनिंग वही है कि इट इज 3 स्क्वायर x स्क्वायर, Yes, sir. बट हमें फुल ब्रैकेट लिखना है इसीलिए। Sir, we cannot solve this 3x square minus 2y plus 4x square. वी कैन नॉट सॉल्व, हाँ करना है ना सॉल्व, आपको करना है आगे। अच्छा, ब्रैकेट के अंदर क्या है, 2 ब्रैकेट्स बना के दे दिए मैंने। नाउ यू हैव टू ऐड बोथ द ब्रैकेट्स एंड सबट्रैक्ट बोथ द ब्रैकेट्स। This will become 7x plus 2y. Mute yourself. Now, whenever you have like this, where here you can take the minus, देखो यहाँ पे minus x और minus 2y दोनों minus है। Whenever you have both terms as negative, you take the minus sign common. Minus sign common ले लो तो क्या बन जाएगा x plus 2y। ओके, माइनस साइन को कॉमन लो एंड जो भी टर्म आप कॉमन लेते हो, ठीक है, माइनस साइन या कोई नंबर वगैरह, तो उसको आपको ब्रैकेट के ये जो 2 ब्रैकेट्स होते हैं, दीज आर द 2 ब्रैकेट्स ना, इसके स्टार्टिंग में आपको लिखना होता है। कहाँ पे, यहाँ पे लिखना होता है। अगर आप कोई नंबर को या आप किसी साइन को कॉमन लेते हो तो ओके। तो यहाँ पे आपने माइनस साइन को कॉमन लिया है तो ये बन जाएगा x प्लस 2y, और जो माइनस साइन कॉमन लिया है वो आपको यहाँ पे लिखना है। क्योंकि अगर आपने सिर्फ उस माइनस साइन को कॉमन लेके अगर आपने इसी ब्रैकेट के आगे लिखा, समझो आपने इस ब्रैकेट के आगे इसको ऐसे लिख दिया, ऐसे लिख दिया, तो इससे क्या होगा, कंफ्यूजन हो जाएगा। बिकॉज ये दोनों ब्रैकेट्स तो मल्टीप्लीकेशन में है और ये माइनस साइन आने की वजह से कंफ्यूजन होता है। इसलिए रूल क्या है मैथ्स में कि सेकंड ब्रैकेट में से भी अगर आप कुछ कॉमन लेते हो तो दैट आल्सो इज टू बी रिटन बिफोर द फर्स्ट ब्रैकेट। सर तो मतलब ये आपने अभी बोला तो 7x plus 2y minus x plus 2y नहीं होगा वापस, मतलब वापस सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं नहीं, वो गलत हो जाएगा। अच्छा, Okay, the next sum, the question number 5 is same as 4th, so I want you to do it as homework. I hope this is copied. So I'll do the next sum, question number 6, the sub question 6. Now here, see again, हमारा aim क्या होता है, फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर बनाना। द फर्स्ट ब्रैकेट इज ऑलरेडी गिवन, द फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर इज ऑलरेडी गिवन, ठीक है, तो उसको हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे। सेकंड यहाँ पे ब्रैकेट बनाएंगे। सो 49 किसका स्क्वायर है, 7, y स्क्वायर y का स्क्वायर है, एंड 9 इज स्क्वायर ऑफ 3 द होल स्क्वायर। नाउ 2 ब्रैकेट्स आर रेडी, सी दिस इज द फर्स्ट ब्रैकेट, ये है ना फर्स्ट ब्रैकेट, और ये है सेकंड ब्रैकेट, दोनों रेडी हो गए। सो नेक्स्ट स्टेप इज जो भी ब्रैकेट के अंदर है एक बार उन्हें ऐड करेंगे एंड एक बार सबट्रैक्ट। So x minus y upon 2 plus 7 upon 3 and x minus y upon 3
minus 7y upon 3. We have added ones and we have subtracted ones. Okay, I've added ones and I have subtracted ones. Now, for these two terms, if you observe carefully, denominator is same. No need to take LCM. हम इन दोनों टर्म्स को सिंप्लीफाई कर सकते हैं. It can be written like this: minus y plus 7y upon 3. Because दोनों का डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे. Here also minus y minus 8y upon 3. So what is minus y plus 7y? Plus 6y. Yes, Pakshal, any doubt? So why 8y has come? 7y will come now. अरे हाँ, ये 7y. Yes, yes, yes. ये मैंने गलती से आंसर लिख दिया यहाँ पे. 7y. Okay. Yes, any doubt? Veer, any doubt? No, sir, that seemed out only. Okay. So अभी क्या होगा नेक्स्ट स्टेप पे? minus y plus 7y will become 6y upon 3. And यहाँ पे minus y minus 7y will become minus 8y upon 3. ठीक है. अब ये 6 और ये 3 कट हो सकता है ऊपर नीचे, क्योंकि ये सेम फ्रैक्शन है. So 3 1s are 3 2s are. So x plus 2y. और यहाँ पे कोई कैंसिलेशन पॉसिबल नहीं है. So it is 8y upon 3. That's it. This is my answer. Sir, you wrote that 6y upon 3 is equals to 2y, but there is no y here in 3. So how can you? नहीं नहीं, y here in 3 नहीं. देखो, समझो अगर मेरे पास ऐसा नंबर है 2x upon 4, तो मैं 2 को और 4 को कैंसिल कर सकता हूँ. But x नहीं है ना. हाँ, अगर x नहीं होता है ना, इसका मतलब क्या है? देखो, इसका मतलब समझो. कैंसिलेशन कब पॉसिबल है? जब टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है. मतलब 2x का अपॉन 4 का मतलब क्या है? दिस इज 2 into x upon 4. तो आप 2 और 4 को कैंसिल कर सकते हो. एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होगा. जैसे 2x plus 4 है अगर, तो मैं इसको ऐड नहीं कर सकता क्योंकि 4 के साथ x नहीं है. ठीक है, ऐड नहीं कर सकता मैं उसे. सब्ट्रैक्ट, डिवीजन में अगर वो है तो मैं कर सकता हूँ. Sir, in the next one, we have to use that a minus b the whole square formula, I think, because the question is 4c square minus a square minus 2ab minus b square. That's why. So 4c square minus a minus b the whole square. Yes, yes. Next question number. Now we are starting with the main question.
Question number 5. The question is 4c square minus a square minus 2ab minus b square. Now see what can be done here carefully. Important question. See, सबसे पहले तो understand the formula. What is the formula for a plus b the whole square? It is a square plus 2ab plus b square. And what is the formula for a minus b the whole square? It is a square minus 2ab plus b square. Okay, a square minus 2ab plus b square. इसमें notice one thing. The a square and b square terms are always positive. a square और b square terms कभी negative नहीं होते. ठीक है, ये हमेशा पॉजिटिव रहते हैं क्योंकि वो स्क्वायर टर्म्स है और स्क्वायर किसी का नेगेटिव नहीं होता. ओके, तो नेगेटिव क्या होता है? नेगेटिव होता है या तो 2ab पॉजिटिव होगा या तो 2ab नेगेटिव होगा, डिपेंडिंग अपॉन वो फॉर्मूला किसका है. अगर माइनस का फॉर्मूला है तो देयर विल बी माइनस 2ab. प्लस का फॉर्मूला है, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो इट विल बी प्लस 2ab. ओके, तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होने चाहिए. ठीक है, so what can be done? Is any doubt, Midansh? Sir, but it is formula is a square plus b square plus 2ab, no? हाँ, it is one and the same. One and the same ना. उसको हम पहले लिखे a square plus b square plus 2ab लिखे या 2ab को बीच में लिखे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. It means the same. ऐसे लिखो या ऐसे लिखो. इनफैक्ट ये ज्यादा बेटर होता है. मैं हमेशा ये लिखता हूँ, बट जनरली स्टूडेंट्स को आदत ये होती है पढ़ने की. तो ठीक है, यहाँ पे तो देखो, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर है. 2ab तो है, लेकिन माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है. माइनस से फॉर्मूला नहीं बनता. तो हमें क्या करना, इससे हमें क्या हिंट मिलती है? इससे हमें ये हिंट मिलती है दैट यू हैव टू फर्स्ट फ्रॉम दीज थ्री टर्म्स यू हैव टू टेक द माइनस साइन कॉमन फर्स्ट. आप माइनस साइन कॉमन लोगे तो इट विल बिकम, सबकी साइन चेंज हो जाएगी. All three terms, the sign of all three terms will change because we have taken the minus sign common. Okay, हमें क्लियरली दिख रहा था कि फॉर्मूला तो है यहाँ पे, a स्क्वायर है, 2ab है, b स्क्वायर है, लेकिन जो साइंस थी वो गड़बड़ थी, तो इसीलिए आई हैव टेकन द माइनस साइन कॉमन. देन ये 4c स्क्वायर, दिस इज द स्क्वायर ऑफ 2c द होल स्क्वायर. ठीक है, एंड ये जो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है, ओके, जो क्वेश्चन में दिया है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये किसका फॉर्मूला है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए प्लस बी द होल स्क्वायर. ये इसी का फॉर्मूला है. करेक्ट, ये इसी का फॉर्मूला है ना. तो मैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर को पूरे को रिप्लेस कर दूंगा और वहां पे क्या लिखूंगा? ए प्लस बी द होल स्क्वायर. समझ में आ रहा है? सर आपने पूरे को a प्लस बी स्क्वायर लिख दिया क्योंकि वो इसके लिए था a प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. हाँ, सर हम लोग वो 2c स्क्वायर माइनस वो पूरा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से लिख सकते हैं. अभी करेंगे ना, अभी नेक्स्ट स्टेप में. अच्छा, वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने के लिए दो ब्रैकेट्स रेडी होने चाहिए जिनके ऊपर स्क्वायर है. यहाँ पे दो ब्रैकेट्स रेडी नहीं थे, अभी हमने दो ब्रैकेट्स रेडी किए हैं. नाउ वी आर रेडी, द फर्स्ट ब्रैकेट स्क्वायर माइनस सेकंड ब्रैकेट स्क्वायर. नाउ माय नेक्स्ट स्टेप विल बी ऐड बोथ द ब्रैकेट्स, जो उनके अंदर कंटेंट्स है उनको, और सेकंड विल बी सबट्रैक्ट बोथ द ब्रैकेट्स. और इनको थोड़ा अल्फाबेटिकली लिख दो तो वो बेटर होता है. a plus b plus 2c, and here when you open the brackets 2c minus a minus b आएगा. ठीक है, इसको ऐसे ही रखो. ऑलवेज राइट द पॉजिटिव टर्म फर्स्ट. हमेशा पॉजिटिव टर्म पहले लिखना चाहिए और फिर नेगेटिव टर्म लिखना चाहिए. ठीक है, इसको आप ऐसा भी रख सकते हो, 2c plus a plus b भी रखोगे तो भी चलेगा, बिकॉज ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव, दैट डजंट मैटर.
I hope this sum is understood. This was the first sum of main question 5. Now the second question. 9a square minus b square plus 2bc minus c square. अब इसमें भी सेम है. These last three terms are making a formula. b square plus 2bc. तो इसमें से पहले देखो मैंने बताया था कि स्क्वायर का टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए. स्क्वायर का टर्म अगर नेगेटिव है मतलब टेक द माइनस साइन कॉमन. माइनस साइन को कॉमन लो. तो ये तीनों टर्म्स की साइन चेंज हो जाएगी. दिस माइनस बी स्क्वायर विल बिकम प्लस. प्लस 2bc बन जाएगा माइनस 2bc और माइनस सी स्क्वायर बन जाएगा प्लस सी स्क्वायर. साइंस चेंज होते हैं. When you take the minus sign common, the sign of each term changes. ठीक है. Now 9a square is nothing but 3a the whole square. And ये किसका फॉर्मूला है? b square minus 2bc plus c square. Yes. Someone else give me the answer. Krishna, Mitansh, we are always giving the answers. Someone else come forward to give the answer. Yes, Saksham. Yes, Saksham, answer. I cannot hear you. Nothing, can't hear you. Yes, Meg. Sir, b minus c the whole square. Correct. b minus c the whole square. b minus c the whole square. ठीक है. कैसे पता चलता है मैं एक बार वापस बताता हूँ. देखो इसका एक तरीका होता है जानने का कि व्हाट यू गेट b minus c the whole square. ओके सुनो. हाँ, सो आई वाज सेइंग कि इसका कैसे पता चलता है किसका फॉर्मूला है. ध्यान से देखो. ये किसका स्क्वायर है? b का. सो पहले आप b लिखो. ये किसका स्क्वायर है? c का. तो यहाँ पे c लिखा. और 2bc के साथ साइन कौन सी है? 2bc के साथ साइन है नेगेटिव, तो आपने नेगेटिव साइन डाली और होल स्क्वायर कर दिया उसे. ओके ऐसे ही होता है. ऐसे ही फॉर्मूला बनता है. ठीक है. रिमेंबर दिस. b स्क्वायर से एक टर्म मिलता है, एक c स्क्वायर से मिलता है. ठीक है. और जो साइन यहाँ पे होती है वो साइन आ जाती है. So now my two brackets are ready. 3a square minus b minus c square. So now add both the brackets and subtract both the brackets. Bas, this is your answer. Next. Now I have a square minus 9b square plus 6b minus 1. Okay. Now here, see,
we have to think what can be considered as a formula. ये हमें सोचना पड़ता है कि कौन से 3 टर्म्स को मिला के फॉर्मूला बनेगा. ओके, कौन से 3 टर्म्स को मिला के फॉर्मूला बन सकता है, ये हमें सोचना पड़ता है. विथ प्रैक्टिस इट कम्स. ओके, तो कैसे पता चलेगा? जैसे अभी यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि पहले 3 टर्म से फॉर्मूला बनेगा, अगर आप सोच रहे हो तो इट इज रॉन्ग. क्यों? बिकॉज ये पहला टर्म ए स्क्वायर है, ठीक है, दूसरा टर्म 9b स्क्वायर है, ठीक है, ये थर्ड टर्म जो है ये होता है 2ab वाला टर्म, ठीक है. अगर ये 2ab वाला टर्म है तो इसमें जो है a भी होना चाहिए था, ठीक है. फिर कुछ भी आता आंसर, 2 इंटू ए आता, इंटू बी की वैल्यू होती है आपकी 3b, तो आपको आंसर आता 6ab. ऐसा आना चाहिए था, बट यहाँ पे सिर्फ 6b दिया है. तो दैट मीन्स इससे हमें क्या हिंट मिलता है? दैट फर्स्ट 3 टर्म्स डज नॉट मेक अ फॉर्मूला. और सेकेंडली ये भी है कि यहाँ पे जो स्क्वायर वाला टर्म है उसके साथ नेगेटिव साइन है. स्क्वायर वाले टर्म के साथ कभी नेगेटिव साइन नहीं होती है. ओके, सो यहाँ पे द फर्स्ट 3 टर्म्स इज नॉट मेकिंग अ फॉर्मूला. द लास्ट 3 टर्म्स, दीज 3 टर्म्स आर मेकिंग अ फॉर्मूला. मैं इसमें से माइनस साइन पहले तो कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है. तो फर्स्ट आई विल टेक द माइनस साइन कॉमन, सो आई विल गेट 9b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 1. ओके, नाउ दिस इज मेकिंग अ फॉर्मूला. ए को तो मैं लिख देता हूँ a द होल स्क्वायर. ओके, अब जैसे मैंने ये वाला कॉन्सेप्ट आपको बताया था यहाँ पे कि मैंने कैसे फाइंड किया कि कोई भी 3 टर्म्स जो दिए है वो किसका स्क्वायर होता है, सेम आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. कैन एनीवन टेल मी कि ये किसका स्क्वायर होगा? यस कृष्णा. व्हाट? हैंड रेज है आपका, तो आंसर दो. क्या मतलब ये 9b स्क्वायर का स्क्वायर? हाँ, ये किसका स्क्वायर है? तो किस किस टर्म का ये होल स्क्वायर है? ये एक स्क्वायर है, मतलब जैसे जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, वो हाँ. किसका स्क्वायर होता है? a प्लस बी द होल स्क्वायर का. हाँ. वैसे ये 3 टर्म किसका स्क्वायर है? सर 9 का स्क्वायर 3 है एंड इसका 3 आएगा, 9 का 3, 9b स्क्वायर का 3, 6 को हम लोग लिख सकते 3b इंटू 2 और प्लस 1. मैंने आप लोग को 3 स्टेप बताया, आप उसी को फॉलो करो. आप लोग ज्यादा नहीं सोचना है आपको. मैंने क्या 3 स्टेप बताया? पहला टर्म किसका स्क्वायर है? 3 का. 3b. 3b वेरिएबल भी तो है साथ में, ठीक है. 3b का स्क्वायर है. फिर ये जो लास्ट टर्म है ये किसका स्क्वायर है? 1. ये सॉरी, लास्ट टर्म है किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर है, ठीक है. तो 1 लिखो. एंड ये जो मिडल टर्म होता है उसको आपको सोचना ही नहीं, उसमें आपको सिर्फ साइन को देखना है, साइन. तो इसमें साइन क्या है मिडिल टर्म में? Minus. माइनस साइन है, तो बस यहाँ पे माइनस साइन पुट करो, तो होल स्क्वायर. Sir, will not write 6b then. नो नीड टू राइट 6b ना. आप 2ab वाला टर्म कभी नहीं लिखते. जैसे फॉर एग्जांपल जब ये फॉर्मूला है, इफ यू हैव दिस फॉर्मूला, तो इसमें आप जब होल स्क्वायर तो क्या लिखते हो? आप सिर्फ a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखते हो ना. इसमें थोड़ी 2ab का टर्म लिखते हैं हम, सिर्फ a प्लस बी द होल स्क्वायर लिखते हैं. सो दिस इज 3b माइनस 1 द होल स्क्वायर, ठीक है. देखो मैं आपको करके भी दिखाता हूँ. 3b माइनस 1 द होल स्क्वायर क्या होता है? अगर एक रफली करके दिखाऊं मैं आपको, 3b माइनस 1 द होल स्क्वायर, तो दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो ये हो जाएगा 9b स्क्वायर माइनस 2 3 6b प्लस 1. ये आ गया ना सेम टू सेम. जस्ट आपको एक करके बताया मैंने.
ठीक है, हैंड्स आर रेज्ड, एनी डाउट तो ही अपना हाथ रेज करो. If any doubt, keep your hand raised, or else please lower it. Your hand raised comes in front of the screen ऐसे, तो उससे थोड़ा इरिटेशन होता है. तो जब डाउट है तब अगेन डेफिनेटली डू इट. Yes, Kali. Sir, where did the 6 gone? Just now I said, see. Tell me a square plus 2ab plus b square. These three terms is a formula of which term? Are you there or gone? Yes, Kali, will you answer? I unmute you. Yes, sir. So I'm asking that if you have a square plus 2ab plus b square, you will replace it with this a square plus 2ab plus b square. ये पिछले सब में था ना ऐसा, तो हमने इसको किससे रिप्लेस किया था? A square plus B square. a plus b the whole square, correct? Yes. करेक्ट. तो इसमें ये 2ab वाला टर्म कहाँ गया? कहीं नहीं गया 2ab वाला टर्म. ये जब a प्लस बी द होल स्क्वायर को एक्सपांड करेंगे तो अगेन यू विल गेट a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. ओके, हमने यहाँ पे फॉर्मूला से उसे एक्सपांड नहीं किया, Okay. हमने उसे कंप्रेस कर दिया, आप ऐसे कह सकते हो उसे. ठीक है, अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है तो आप लिखोगे a माइनस बी द होल स्क्वायर. उसमें वी डोंट सर्च फॉर माइनस 2ab. कहाँ गया? स्किप तो नहीं हो गया? नहीं नहीं. व्हेन इसको जब एक्सपांड करेंगे ना होल स्क्वायर को तो वापस ये आ जाएगा. ठीक है, इन द सेम वे यहाँ पे देखो, वेयर आई हैव सॉल्व दिस, ये जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है, यहाँ पे ये 3b माइनस 1 द होल स्क्वायर को मैंने एक्सपांड किया, 3b माइनस 1 द होल स्क्वायर को, तो मुझे एक्सपांड करके क्या मिला? ये मिला 9b स्क्वायर माइनस 6b प्लस 1. So this Yes, is sir. nothing but equal to 3b minus 1 the whole square. Yes, sir. हाँ, तो इसीलिए I have replaced this with 3b minus 1 the whole square. Okay. Thank you, sir. हाँ, the confusion that where this 6b went वो क्यों आता है पता है? क्योंकि मैंने आपको ये टेक्निक बताई कि आपको पता चलेगा ये किसका स्क्वायर है. तो ये किसका स्क्वायर होता है? फर्स्ट टर्म के लिए 3b लिखते हैं, लास्ट टर्म के लिए 1 लिखते हैं और यहाँ से माइनस साइन लेके होल स्क्वायर करते हैं. तो आपको ऐसा लगता है ये 6b का यूज ही नहीं हुआ, बट ऐसा नहीं है, वो एक्सपांशन में आ जाता है. दिस इज द मिडल टर्म ना, ये 2ab वाला टर्म होता है, वो एक्सपांशन में कवर हो जाता है. जब व्हेन यू विल ओपन दिस ब्रैकेट इफ नीडेड इन फ्यूचर देन ऑटोमेटिक 6b विल आल्सो कम. So I hope the doubt is cleared. तो आप लोग उस 6b का टेंशन मत लो. ये आपको बार बार करना पड़ेगा, बार बार अलग अलग टाइप के नंबर्स आते रहेंगे. फॉर एग्जांपल कभी आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो यू विल हैव टू रिप्लेस दिस विद x प्लस वाई द होल स्क्वायर. ऐसा दिस विल कीप कमिंग, ऐसे फॉर्मूलाज आते रहेंगे जिसको आपको रिप्लेस करना पड़ेगा. ओके, नाउ once we have got this, so inside the bracket I have 3b minus 1 a and 3b minus 1. So this is now, अब ये हो गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में. तो ऐड बोथ द ब्रैकेट्स and subtract both the brackets. This will be the last step.
Yes, Kali. Answer me this question. How will I do this one? So 5 minus a square, 5 minus a minus b the whole square. Wait. First step, this 25 is nothing but 5 square. I square. First, I need to do one step here before writing the formula. What step is that? See here, a square के साथ माइनस साइन है and b square के साथ भी माइनस साइन है, तो ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर और 2ab, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है. फॉर्मूला में हमेशा प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर होता है. So how do I bring the plus sign here? Yes, Kali. Just take a look at the question number By putting the whole term in the bracket. by taking the minus sign common. Very good. You should remember that. Okay. By taking the minus sign common. So यहाँ पे I will take the minus sign common. So these terms इनकी sign change हो जाएगी. Like this. ठीक है. Now this a square minus 2ab plus b square is what? A minus b the whole square. Very good. So now this is a minus b the whole square minus 5 square. 5 square. Now we will add the brackets and subtract the brackets. Okay. Okay. Yes, Saksham, doubt. Saksham, I think there is some problem with your mic because again and again I'm trying. I'm unmute you, but I think no one can hear you what you're saying. Just to fix that. This will be the final answer. Now here again we have to think that कौन से 3 टर्म्स का फॉर्मूला होगा. तो कैसे पता चलेगा? देखो सिंपल तरीके से पता चल सकता है कि ये y और 1 ये तीनों एक जैसे टर्म्स है, x अलग ही है. ठीक है. सो दिस 49 x स्क्वायर कीप इट सेपरेटली और दिस इन तीनों टर्म्स में से टेक माइनस साइन कॉमन. तो माइनस 25y स्क्वायर माइनस 10y प्लस 1. This 49x square is nothing but 7x the whole square. ठीक है. Yes. Now let me ask someone कि ये किसका फॉर्मूला है. जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से मुझे बताना पड़ेगा. Wait, let me ask someone जो रेगुलर आंसर दे रहे हैं. They are doing it very well. तो मुझे किसी नए आदमी को पूछना है. Yes, हर्ष. हर्ष. Yes, sir. Okay, yes, Mitansh, answer. So 5 minus 1 Hmm, the whole square. ये किसका स्क्वायर है? So 5. y कहाँ गया फिर? हटा दूं y को. So 5y. 5y बोलो ना फिर. 5 minus 1 बोलोगे तो 5 minus 1 तो 4 हो जाएगा. So 5y minus 1. So 5y करेक्ट. ये 5y यहाँ से मिला और फिर ये 1 था तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 का ही होता है. और माइनस साइन कहाँ से मिली आपको? ये इधर से.
-10y है ना, इसीलिए तो माइनस साइन द होल स्क्वायर. Now I have got two brackets. So जो भी ब्रैकेट के अंदर है, add both the brackets, subtract both the brackets. ये स्टेप आप लोग को सबको अच्छे से आता है. Next, question number 16. Again, same ही question है. Try to solve it on your own. Question number 6, sorry. Yes, Veer, you can answer. Sir, over here we can take this 4a square minus 9b minus 30b plus 25 plus First, 20. step by step. First, you will take the minus sign common here. Yes, sir. Minus step common. Then we will change all the signs in the bracket. Then the answer will be 4a square minus 3b minus 5c. 5c the whole square. Correct. Step by step. तो यहाँ पे ये किसका स्क्वायर है? ये है 3b का स्क्वायर. ठीक है. एंड देन ये किसका स्क्वायर है? 5c का स्क्वायर. ओके. और जो मिडल टर्म है 2ab वाला टर्म, उसके साथ साइन कौन सी है? नेगेटिव. द होल स्क्वायर. देन व्हाटएवर इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट, उसको हम एक बार ऐड करते हैं और एक बार सबट्रैक्ट करते हैं. दिस पार्ट इज देयर इनसाइड द ब्रैकेट, सो ऐड इट वंस and subtract it once. Sir, Yes. if the 2ab term has the plus sign, Then I will take plus here. This will become plus. okay. Whatever is Okay. the sign that 2ab, that will decide the sign of the bracket. Okay, thank you, sir. Yeah. Now this is also a very easy sum. A square plus b square minus c square minus d square minus 2cd. क्योंकि इसमें क्लियर कट फॉर्मूलाज दिए हुए हैं. तो दिस इज द क्लियर केस ऑफ अ फॉर्मूला. ये तो मैं इसे थोड़ा रीअरेंज कर देता हूँ. And here clearly I can take the minus sign format.
तो ये भी एक फॉर्मूला है और ये भी एक फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ a plus b the whole square and this is the formula of c plus d the whole square. So simple is whatever is, once we have got the two brackets, add both the brackets and subtract both the brackets. ये complete कर दो आप लोग. Now this eighth sum, a little difficult one, but उन्होंने hint दिया है, so hint के साथ the sums becomes very easy. So क्या hint दिया है in the eighth sum? So what is the hint given? That split this 4x square. उन्होंने बोला है कि इसको split करो. ये जो 4xy है ना, इसको split करो 2xy minus, या इसको मैं सिंपल तरीके से बताऊं, इनसे थोड़ा और ज्यादा इजी करके, तो इस 4xy को आप लिखो 2xy plus 2xy minus x square minus y square. इस 4xy को हमने ऐसे स्प्लिट किया, ये हमारा हिंट था. अब ऐसा क्यों किया, इससे क्या फायदा होगा? क्या फायदा होगा कि दो पेयर्स बन जाएंगे तीन तीन टर्म के. ठीक है, थोड़ा सा इनको मैं रीअरेंज करता हूँ सो दैट यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि क्या फॉर्मूला बन सकता है. ये फर्स्ट, और यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, कुछ ऐसा. बट आई हैव टोल्ड यू क्लियरली दैट एक्स स्क्वायर वाले टर्म्स कभी नेगेटिव नहीं हो सकते. अगर स्क्वायर वाले टर्म्स नेगेटिव है तो टेक द माइनस साइन कॉमन एंड चेंज द साइंस. Now this is also a formula and this is also a formula. दोनों फॉर्मूला है. ठीक है, तो अभी ये तो बहुत सिंपल है कि इसका फॉर्मूला है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ x माइनस वाई द होल स्क्वायर. ओके, और ये जो है ये किसका फॉर्मूला है, कैसे पता चलेगा? ध्यान से देख के. द फर्स्ट टर्म इज अ स्क्वायर ऑफ विच टर्म? दिस इज स्क्वायर ऑफ xy. ठीक है, देन द सेकेंड टर्म, the last term is the square of which term? 1. And this middle term has which sign? Plus sign. Correct. तो यहाँ पे आ गई plus sign the whole square. Okay, now add both the brackets and subtract both the brackets. We cannot simplify it. कोई किसी से ऐड नहीं हो रहा है, कोई किसी से सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है. ठीक है, so this will be your answer.
Okay. We are left with question number 6 and question number 7. That is 9 more questions. No, question number 8 also is there. Okay. So we'll do them next time. That's it for today.